લોકેટ નગે ઘાસીભાઈની બહુ સુશલાબેનને આપવું. બોરમાલા નગે ઇન્દુબેન ભાનુપ્રસાદ મારી નણંદ થાય આપવું. ચાંદીના ઉપર લખાવેલી આઇટમ નંબર 5ના કુલ વાસણો ઝભ્ભા ગોપાલ મંદિર હાલમાં છે તેવા પૂજા અર્થે વાપરવાના વહીવટ કરવા સોંપું છું. ભરૂચ મુકામને જે કોઈ રોકડ રકમ મારી પાસે છે તે રકમમાંથી મારી મરણ પછી મારી ક્રિયા ઉત્તર ક્રિયામાં જैसे કે 10મું 11મું 12મું 13મું વર્ષી તમે જ મારા ફૂલ હરિદ્વાર મોકલવાના. તમેનું બીજી યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે મારા પાછળ ખર્ચ કરવો. ખર્ચ કર્યા પછી જે રકમ વધતે જંત્રાલ મંદિર ખાતે રોકવી. ભરૂચ મુકામે હાલમાં જો વાસણ તથા ગોદડા ઘર વખરી જે કંઈ સામાન છે અનાજ વગેરે તે સામાનમાંથી તમને જો સામાન યોગ્ય લાગે એટલો ઝભ્ભા મંદિરમાં બીજો સામાન વધતે તે જંત્રાલ ખાતે મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવી. હવે જંત્રાલ મુકામની મિલકતની વ્યવસ્થા નીચે મુજબ કરવાની. હાલ જે અમારું સહિયારી મકાન છે તે મકાન શ્રી સદગુરુજીના મંદિર તરીકે હાલમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેવી રીતે મકાનનો ઉપયોગ મંદિર તરીકે કરવાનો છે. તે મંદિરના ઉપયોગ માટે તમને સોંપું છું. સદર મકાન શ્રી રામશંકર નરભયરામ જાનીએ બનાવેલું હોવાથી આ સદર મકાન મારા વારિસ મારા દેવર જાની હર્ષદરાય શંકર જાની સહિયારી મિલકત ગણાય. જેથી તે મંદિર ખાતે વાપરવાની મારી ઈચ્છા હોવાથી તે મકાનનો મંદિર ખાતે ઉપયોગ કરવો. મતલબ ગોપાલને કહા મંદિર के लिए उपयोग करो. जंत्राल मुकाम मारा पहरवाना सोनाना दागीना उनके पास अलग थे और जंत्राल में अलग थे उनके. जंत्राल मुकामे मारा पहरवाना सोनाना दागीना आश्रे तोला 22 सोनाना दागीना છે. તે દાગીના તે તમારે વેચી દેવા અને તે નાના जंत्राल खर्च की व्यवस्था માટે રોકવા. जो पैसा उपजे वो जंत्राल के खर्च से चला. डॉक्टर हर्षदराय जानी તે નામથી બોન્ડ ₹10,000 ના મારી ઉત્પન્ન કરેલી मिलकत में से लेवाड़िया है. मतलब भाई डॉक्टर को पढ़ने के लिए जो फिक्स करवा दी. तथा ₹5,000 श्री नगीनदास मगनलाल गांधी छोटा उदयपुर वाला ना नामे बैंक में मूकेला है. ते कुल रकम 15,000 पूरा जंत्रेल माथे मंदिर खाते रोकवा. मतलब उनकी डेथ के बाद. इसके बाद उन्होंने भी बिल लिखी है डॉक्टर भाई. जो जंत्रालनी घर वखरी वासण गोदड़ा राच रचीलू जो कोई छते श्री सदगुरुजीना मंदिर खाते वापरवा माटे उपयोग करवो. जो भी सामान है उनके उपयोग करवो. हवे जो भरूच मारी रोकड़ रकम मारी क्रिया थई पछी વધતે તથા મારા સોનાના દાગીના जो जंत्राल मुकाम છે તેના નાના ઉપર लिखावेला બોન્ડ तथा गांधी सेठना नामे चलती ऋण मतलब कर्ज पे दे रखी थी ऋण के ब्याज पे रकमનું टोटल जो कोई थाय તે कुल रकम से सदगुरु महाराजना जंत्राल मुकामे खर्च माटे कुल रकम बैंक में मूकवी. एनी व्यवस्था खर्च करवामां पूजा वगैरह कोई पण खर्च गुरु पूनम एवा में खर्च करवो. अने जरूरत पड़े मकान में रिपेरिंग वगैरह में जो कोई खर्च थाय तेना तथा ऊपर लिखेला ट्रस्टीओ ने खर्च करवा संपूर्ण अधिकार सौंपवामां आवे छे. अने हाल मंदिरनी पूजा करवा माटे जे शंकरलाल पूजा करे छे ते पूजा तेमनी જ્યાં સુધી ઈચ્છા હોય તથા ત્યાં સુધી તેમને પૂજા કરવા માટે રાખવા એવી મારી ઈચ્છા છે. તો પૂજા માટે તેમને રાખવા આ રીતે મારી મિલકતની વ્યવસ્થા કરવા તમારા ઉપર લખેલા ટ્રસ્ટીઓને અધિકાર સોંપું છું. સદર વહીવટ મારી સ્થૂળની હયાતી પછી જ વહીવટનો અધિકાર તમારે સોંપવામાં આવશે. મતલબ मेरी मृत्यु के बाद तुम कर सकते हो. આ લેખ મારી અક્કલ હોશિયારીથી
સાફ દાનત તથા अच्छी તંદુરસ્તીની હાલતમાં મારી રાજી ખુશીમાં મારી સ્વખુશી બુદ્ધિથી ભરૂચ બંગલામાં લખ્યું છે તે મને તથા મારા વારીસોને મંજૂર છે. તારીખ મિતિ સદર. અંગૂઠા બાઈ રવિકાંતના બેન. જમણા હાથના અંગૂઠાના નિશાન. મારી રબૂરું કર્યું છે અંબાલાલ ફૂલશંકર પંડ્યા. ભાનુપ્રકાશ શિવશંકર પંડ્યા. ગવા में शाह जगन्नाथ भगवान जी લીમખેડા. દાયાભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ દાહોદ. शाह पुंजालाल सोमालाल सामा. गांधी नगनदास मगनलाल छोटा उदयपुर बारडोली. ये गोपाल की. अभी भाई डॉक्टर ने भी लिख के दिया था गोपाल की. तारीख 4/10/74. डॉक्टर हर्षदराय रामशंकर जानी, वड़साल तालुका वलसाड़. स्टाम्प खरीदने वाला घासीराम का भी. श्री सदगुरुवे नमः गुरुओं. पूज्य भाभी श्री रविकांताबेन घनश्याम राय जानी, जंत्रालवाला, हाल रहवासी भरूच, मुकामे बंगला नंबर 60, भृगुपुर सोसायटी. हूँ हर्षदराय रामशंकर जानी, जंत्रालवाला, हाल रहवासी बलसाड़, उम्र बरस 48, जाते ब्राह्मण, धंधो डॉक्टरनी नौकरी. जत एक शब्द गुजराती में जत. आज रोज संवत 2030 बीजा भादरवा बदी पाचम. तारीख 5/10/74 वार शनिवारे. जत आज रोज नीचे मुजब सारी हालत में लखी आपू छूँ કે મારા બાપુ રામશંકર નરભેરામ જંત્રાલ રહેતા હતા અને તેમના બે દીકરા મારા મોટા ભાઈ ઘનશ્યામરાય અને હું એટલે હર્ષદરાય એમ બે ભાઈઓ તથા બે બહેનો એ અમારી મોટી બહેન કપિલાબેન તથા નાની બહેન ઇન્દુબેન બંને બહેનોને મારા મોટા ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ રૂબરૂ પરણાવી દીધું છે. એને સારી હાલતમાં છે અને ત્યારબાદ હું આજ રોજ રેલવે દવાખાના વલસાડમાં ડૉક્ટર તરીકે નોકરી હોવાથી વલસાડ રહું છું. ત્યારબાદ મારા મોટા ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ સંવત 2016 અષાઢ સુધી પૂર્ણિમાના રોજ ભરૂચ મુકામે ગુજરી ગયા અને તેમના પત્ની રવિકાંતાબેન એટલે કે મારા પૂજ્ય ભાભીશ્રી આજે ભરૂચમાં મકાન ભાડે લઈને ભૃગુપુર सोसाइटी में रहे छे. इसका भी बड़ा प्रसंग चला था किराए से रहने के टाइम पे. भाई डॉक्टर की बदली वलसाड़ हो गई और मकान खाली करना था. बड़ी मार्मिक दृश्य था उसमें. હવે મારા પૂજ્ય બાપુજીના વખતમાં અમારું જંત્રાલ ગામમાં મકાન છે તેનો ઉપયોગ પહેલાંથી મંદિર તરીકે કરવા આવે છે અને તે મુજબ મારા મોટા ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ પણ મંદિર તરીકે તે મકાનનો ઉપયોગ કરતા હતા અને તેમના મરણ બાદ આજે પણ મંદિર તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે હું પણ મારા વડીલો ઉપાર્જિત મિલકત હોવાથી આજે મંદિર તરીકે એ મકાનનો ઉપયોગ થાય એમ ઈચ્છું છું. મતલબ ઈચ્છા હું મારા ભાગમાંથી છૂટો થઈને મારા પૂજ્ય ભાભી શ્રી રવિકાંતાબેનને સોંપી છૂટો થાઉં છું. હવે મારા એ મકાન સંબંધી કોઈ લેવા દેવાનો રહેતે નથી. પણ મારી હયાતી ના હોય ત્યારબાદ મારી પત્ની અશો ચંપા તથા તમો એટલી મારી ભાભીશ્રી આ મંદિરના નીચેના ભાગમાં રહેવાની વ્યવસ્થા રાખવી એ જરૂરી છે. કારણ કે મંદિરમાં રામનવમી તથા ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ થાય છે અને દરરોજ આરતી પૂજા પણ થાય છે. એટલે મારી પત્ની સો ચંપા તથા પૂજ્ય ભાભીશ્રી સુધી જે ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. ત્યારબાદ બંનેઓના મરણ બાદ મકાન તથા રાચરચીલાનો ઉપયોગ સાર્વજનિક મંદિર પૂજ્ય મોટાબાપજીથી ચાલતા અત્યાર સુધીના ગ્રુપ તરીકે ઉપયોગ થાય અને બધા પ્રભુના ભક્તો દર્શનાર્થી આવે લાભ લે એમ ઈચ્છા છે. ઈચ્છુક છું. મતલબ ઈચ્છા. આ મકાનનો ઉપયોગ હું એટલે હર્ષદરાય
रामशंकर जानी तथा मारा पूज्य भाभी श्री रविकांता बेन तथा असो चंपा गोळीनी हयाती बाद मारा पूज्य पिताश्रीनी इच्छा मुजब मंदिर तरीके उपयोग थवो चाहिए। मतलब उनके मरने के बाद भी मंदिर जैसा ही उपयोग होना चाहिए। अने एमा वार्षिक गुरु पूर्णिमा उत्सव बधा मंडलना भाईओ भेगा थईने उजवशे। विधिनी अकल बहुत बड़ा अच्छे उपयोग किए सर। विधिनी अकल गति होय छे। कदाचित एवं बने कि मंडलना भाईओ धीरे धीरे आवण जावण ओछी करे अने गुरु पूर्णिमाना उत्सव न पण उजवाय। तेवा प्रसंगो एक साथे 5 गुरु पूर्णिमाना उजवाय न उजवाय तो ते मकाननी उपयोग कोई पण शैक्षणिक संस्थाने मदद करवामां उपयोग करवो अथवा मारा पूज्य भाभी श्री इच्छा मुजब करो। मतलब एक लाइन उन्होंने वो भी डाल दी कि अगर 5 गुरु पूर्णिमा नहीं मने तो वो किसी संस्था को दे देना, लेकिन जब तक गोपाल जिंदे हैं तब तक उनकी इच्छा के बगैर ये काम नहीं करना। वो तो उसके बाद आ लिखाण मारा वारसदारनी पण बंधन करता छे। हूँ आ लखाण मारी राजी खुशी थी सारी हालत में लखूँ छूँ अने ते मने कबूल मंजूर है। इसमें गवाह है डॉक्टर दया भाई, देसाई भाई, गांधी नगीनदास, प्रमोद राय, रतनलाल। और इसके बाद में इसके पहले एक और गोपाल ने विल कच्ची लिख के दी थी, उसके बाद फिर स्टाम्प पे लिया था। दो पेज। चलो पढ़ो। ये 18/11/72 को गोपाल की हयाती में लिखा, गोपाल ने लिखा। पूज्य जानी घनश्याम राय रामशंकर जानी पोतानी बचत रकम રૂપિયા 20,000 पुरानी रकम पूज्य रविकांता बहन घनश्याम राय जानीनी हाथी रकम રૂપિયા 20,000 पूरा एमना एटले पूज्य रविकांता बहन घनश्याम राय जानीनी इच्छा थी ए रकम जंत्राल घर उपयोगनी वास्ते ए मूડીના વ્યાજમાંથી નીચે મુજબ પ્રબંધ કરવો। दर मासे ₹50 अंके 50 पूरा गांव जंत्रालना पंड्या शंकरलाल ना सामे, मतलब उनके सामने जो बाबजी का मकान सामे घरना देखभाल माटे व्यवस्था माटे रोकड़ा आपवा। मतलब हर महीने उनको 50 रुपया और दे दे। नहीं, वो मकान को देखने करने के लिए। दर वर्षे गुरु पूर्णिमा ओछब अषाढ़ सुधी पूर्णिमा आवे ते उपरोक्त रोकड़ रकममांनी ब्याजमांथी खर्च करवो। ते उजवणी ब्याजमांथी करवी। मूल रकम 20,000 पूरामांथी कोई पण संजोगोमांथी खर्च करवो नथी। जे कोई खर्च थाय वो नंबर 1 व 2 ना ब्याजमांथी करवो। मतलब ऊपर जो उपरोक्त रकम ₹20,000 अंके 20,000 पूरा कोई पण हस्ते बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जानी हर्षद राय रामशंकर नामे मूकवा। जानी हर्षद राय रामशंकर जानी ना वहीवट तरीके सौंप्यू छे। आ रकम 20,000 पूरा अंके 20,000 ना जानी घनश्याम राय रामशंकर ना बचत छे अने पूज्य रविकांता बहन जानी घनश्याम राय जानी इच्छा थी फरी जंत्राल वापरवा ठहरावेलू छे। जानी हर्षद राय रामशंकर ने हयाती बाद पण आ रकम ₹20,000 अंके 20,000 पुरानी रकम फरी जंत्राल घर उपयोगनी राखवानी छे। वखत ब्याजनी रकम खर्च तथा मूल रकम में पण वधारो बीजी बाबत थाय ते नामनु व्यक्ति साथे चर्चा विचारण करीने खर्च करो। मतलब ट्रस्ट के लोगों को पूछ के खर्च करो। आ लखान एमनी एटले पूज्य रविकांता बहन घनश्याम राय जानी ना रूबरू में, मतलब उनकी हयाती में भाई डॉक्टर के साथ ना रूबरू में संवत 2026 ना सुधी 13 वार रविवार 18/11/72 ना रोज भरूच मुकामे भृगुकुल सोसायटी ना बंगला नंबर 60 सोसायटी गांधी ना बंगला में कूची चावी मतलब भाड़े राखवामां मारा सारी हालत तथा पोतानी स्वेच्छाथी जंत्रालनु हमारू रहवानुं घर वडीलो उपार्जित है तेने हमारू मेल गणु है ते जनावनु व्यवस्था लिखी है। इसमें 11 लोगों के वो कोई नाम उन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर हर्षद राय जानी,
पंड्या अंबालाल फूलशंकर, पंड्या भानुप्रकाश शिवशंकर, गांधी नगेंदास मगनलाल, सेठ किशनलाल हीरालाल, सेठ जगन्नाथ भगवान जी, पटेल दाया भाई देसाई भाई। ये वो आनंद ही लिखा हुआ ना रमेश भाई, इस टाइम में आनंद ही लिखा हुआ, मतलब एक ही है दाया भाई। सेठ भगवान जी, राधा किशन जी दाहोद, त्रिवेदी विश्वनाथ भाई, ललिता शंकर झाहुआ, साहब पुंजालाल सोमालाल श्यामा जंत्राल, पंड्या शंकरलाल सोमेश्वरी जंत्राल પંચમહાલ। આ બતાવનું અને જંત્રાલના સ્થળ ઉપરની અવર જવર બંધ થાય જાવે તે પ્રસંગો પુરાની રકમ સંસ્થામાં પૂરી રકમ જાની ઘનશ્યામ રામશંકર જાની નામે આપી દેવી, મતલબ અગર નહીં હોય તો વાંધી દે, જેના જવાબદારી 11 વ્યક્તિઓ પણ આ જીવંત વ્યક્તિઓ સાર છે, मतलब जीवित जब तक है वो इसमें भी हर्षद भाई के दस्तखत है। अंबालाल फूलशंकर है गवाह में, भानु प्रसाद शिवशंकर है, शंकर लाल सोमेश्वरलाल पंड्या, घासीराम कालूराम पुंजालाल सोमालाल, ये उनकी व्यवस्था है। बड़ी मेहनत से इसके लिए धन्यवाद। हिंदी अनुवाद करवाया और अपने उन्होंने वो किया, फिर मैंने इसको गुजराती में ही लिखा कई दिन बैठ के, हाँ। चार पाँच दिन लगे मेरे को। ये वो कठिन काम था और आपके सद्भाव से पूरा हो गया, इसके लिए धन्यवाद। और प्रश्नोत्तर अभी पूछ सकते हैं 5-7 मिनट, किसी को कुछ पूछना हो तो। इनसे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, इनके और अनुभव के बारे में ऐसा 1-2 मित्रों ने कहा था कि सर टाइम कम पड़ेगा आज, तो अगले सैटरडे भी आपसे निवेदन है कि आप ही ये कंटिन्यू कर दें तो हम पे बड़ा उपकार होगा। क्या कहना है आप लोगों का? मेरे से 2-1 लोगों ने कहा था कि तो रही गए सस्पेंड तो बिल पड़ी आती है, तो इनकी तरफ से तो हुआ ही नहीं है। मैंने 2 उदाहरण बताया ना नहीं, आपको, 2 से कोई काम चले यार, 100 है आपके पास और बच्चे जो पूछना चाहते हैं वो हो जाए। कॉलोनी संबंधी व्यक्तिगत ये वो सभी तो नहीं तो अब वो और हो जाए। अच्छा, हाँ, तो एक बढ़िया प्रसंग हमारी तरफ से और वरिष्ठ अगले शनिवार एक आध प्रसंग और होगा। ये 3rd शनिवार को फिर से आग्रह पूर्वक हम सबकी तरफ से निवेदन कर रहे हैं कि आप आए और जोड़े से आए, तो भाभी से भी कुछ पूछेंगे, घर जाएंगे आपके, चाय तो पियेंगे ही खैर, और चाय पानी के बाद चाय का सिस्टम है, तो पानी अभी कोई बच्चा पिला देगा और मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा वहाँ चला जाए, भरत जाए, वो कहना कि वहाँ 20-30 चाय लिया, कितने चाय पीने वाले नया चाय वाला हैं? वो उधर चला यार, तो वहाँ भी चालू होगी कि नहीं? एक आध स्टूडेंट सुना। हाँ सुना रहे ये चाय वाय कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये चलवा पानी तो पिला दो यार। चलो हाँ चलो हाँ, एक आध और कोई आप शुरू कब पढ़ेगा? है? वही वहाँ से शुरू कर दो। हाँ, ये तो झाबुआ जब बाबूजी और गोपाल पधारे थे, हाँ 58 की बात है, 58-59 की बात है, तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपकी उम्र मैं पढ़ता 10-11 साल का था। चंदू भाई के यहाँ रखा, फिर सबके 3-4 घर पे गए थे उस समय, तो सब साथ में ही गया था मैं भी। तो वो जैसे शाम को आए थे बाबूजी, अलीराजपुर से रानापुर होते हुए आए थे, जी तो सीधा हम वहाँ ये जो गोपाल स्टेज बना हुआ है, गोपाल का स्टेचू है राजा का, यहाँ पर हम सब खड़े थे 4-5 लोग, मतलब छोटे में मैं ही था, दूसरे हमारे ब्रदर भी थे, मतलब वेलकम करने के लिए उनको कि भाई बाबूजी अब थोड़ी देर हो गई, गाड़ी नहीं आई। फिर रानापुर से कोई मैसेज आया कि गाड़ी कुछ हो गई, तो वो मतलब बहुत रास्ता देखा, करीब शाम की टाइम इसी टाइम के आसपास, तो सीधा चंदू भाई की यहाँ ही पधरावनी करी थी। तो काफ़ी मतलब अपने से जुड़े हुए जो थे रिश्तेदार भक्त वगैरह से सब धोख देने मतलब गए। तो वहाँ मैं भी गायत्री भाई ने कहा कि भाई बाबूजी को धोख दे दो। मेरे साथ में हरि विठल जी थे,
हम दोनों ने धूप दी, तो वो उनका प्रसंग तो वो बाबूजी ने देखा नहीं, वो तो मस्ती में झूले में बैठे ही थे। तो वो नीचे मोटावी बैठे थे, तो उन्होंने हरी विठल जी महारा आड़ी तो देखो ही नहीं मिला क्या, मतलब मेरी तरफ तो उन्होंने बाबूजी ने देखा ही नहीं है। अब अपन तो ना समझ जैसे ही तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप वापस चला आए, घर चले आए। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि यार अपन कहीं तो भी आप बोल रहे हो। तो रोके आधा गिलास ऐसा लगा कि अपन ने मतलब कोई कमी ढंग से, हाँ कमी है, ढंग से लोग नहीं दिए साथ में। अपना तो मतलब कुछ कमी नहीं। तो वो जब गया तो मैं पर से वो ज्यादा भरा हुआ है। पीछे पतरे वाले ये सुविधा वहाँ करी, पर कुर्सी सुविधा लगा करी। के बाबूजी बैठे विराजमान थे। और उस समय कोई भी 2-4 लोग थे। अकेले बाबूजी चंद्रमा को मतलब निहार रहे थे, देख रहे थे। मैंने उनको धोख तो उन्होंने आँख घुमा के दृष्टि डाली, पूछा करा कुछ भी नहीं। तो फिर मैं घर आया और मैंने कहा तो मैं बाबूजी के दर्शन मेरे को अच्छी तरह हो गई। दूसरे दिन फिर उनको आरती का, जब बाबूजी का समय हुआ आरती पूजन वगैरह, तो ये जो अपना इधर वाला जो फोटो है पूजा वाला, उसी रूप में बाबूजी की मतलब पूजा सभी ने करी। वही परात में बिठाया, परात में पाटला फिर हुई पंचामृत, ये खुली आँख वाला जो है, खुली आँखों का ये सब इसी रूप में हमने मतलब पूजा उनकी करी। सब आरती भी चंदूरी ने उतारी, फिर बारी बारी से मोटा भाई ने से 4-5 लोगों ने उतारी थी आरती, वो पूरा ध्यान तक छोटी अवस्था थी। पर जो दृश्य मेरे को है वो यही पूजा वाला, बड़ी परात में बिठाया उनको, पाटले पर बिठाया, फिर सब ने बड़ी प्रेम से उनको नहलाया। कोई पंचामृत डाल रहा था, तो कोई गुलाब के फूल डाल रहा था, कोई इत्र डाल रहा था, कोई मालिश कर रहा था पैर की, तो कोई क्या, मतलब सभी उसी यहाँ से। फिर दूसरे दिन वो सबके घर पधारे थे। अब हमारे घर की बाबूजी और गोपाल दोनों का अलग अलग स्थान रखा। तो वहाँ खाली चरणामत मतलब पंचपात्र से पूजा, मतलब वो जैसे आरती वगैरह कुछ सिस्टम भी नहीं था उसमें। वहाँ से मेरी उनसे जुड़ा हुआ। फिर पहली बार जब हम मतलब गए, मैं और हमारे दोनों भाई, हाँ जोड़ा हमको भेजा चल भेजा, तो नहीं शादी नहीं हुई थी उसकी, अच्छा ब्रदर शांतु भाई के साथ हम दोनों साथ में ही रहते थे। भेजा हमको, गोपाल बड़े प्रसन्न हुए कि जो है चल भाई का दोनों भाई आए। बस वहाँ से फिर हमारी दिनचर्या शुरू हुई, उनसे मेल जोल चलता रहा, बढ़ता रहा, जाते रहे सब। तो किस्सा जो है शरद पूर्णिमा का है, अच्छा जनता नहीं भरूच का। शरद पूर्णिमा पे यहाँ से हरीश भाई जो चारण थे, ये रबड़ी बना के भेजते थे, और नरे भी सीताफल भेजते थे। नियम था मतलब, रबड़ी भी अच्छी इतनी बड़ी, केसर वगैरह डाल के उनकी घर की बनी हुई, और सीताफल जो थे ये कब्रिस्तान इसके सामने कि याकूब का करके रहता, उसके सीताफल फेमस थे। मतलब जब सीताफल लगना शुरू हो जाते तो नरे भाई खुद जाते और उन पर कपड़े से बंधवा देते उनको, ये इतने सीताफल रखना, इसमें से एक भी सीताफल जाए नहीं, टूटे नहीं, और किसी को देना नहीं। उनका दोस्त ना भी था, वो उसी मोहल्ले में रहते थे और उसी में, तो वो अब सीताफल और ये ले जाना। तो मेरे को कहा उन्होंने कि यार भगत भाई तुमको जाना पड़ा है। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मेरा कल काम है, मैच है अपना कि क्या। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरा मैच है यार, बहुत बड़ा जोरदार मैच है पुलिस वालों के साथ। तो कहे नहीं यार तुमको जाना पड़ा, मैच को छोड़ो इधर, मारो गोली। फिर मैंने तैयार हुआ, और अब वो देहरादून से जाने वाली बात, देहरादून से गए। उस दिन देहरादून हो गया लेट, काफ़ी लेट हो गया, करीब 1 बजे
भरूच पहुंचा मैं। अब एक कंडिया और एक केटली और एक मेरी थैली छोटी सी। अब जैसे ही स्टेशन पर उतरा तो जिस रास्ते से जाने का स्टेशन से लेफ्ट हैंड की तरफ जंगले लगे हुए थे, वहाँ से हम निकल के जाते थे। उसके रोड क्रॉस करने पुलिया के बाद फिर गोपाल का बंगला आ जाता, मतलब बहुत 5-7 मिनट में पहुँच जाते थे। शॉर्टकट। उस दिन क्या हुआ कि उस वहाँ पे जो रास्ता बना रखा था वहाँ पर उन्होंने स्लीपर गाड़ दिया। अब निकल नहीं सकते हैं कैसे में। अब मैंने कहा यार 1 बज रही है और ये अपन अब वापस स्टेशन से उधर जाएं और रिक्शा लेके जाए तो 1 घंटे, मतलब 2 मामूली बात 2 बजे रिक्शा मिलेगा नहीं, और रिक्शा मिलेगा कि 2-2:30 बजे तक पहुँचे, ऐसा मन में मतलब था। और डर भी लग रही थी थोड़ी सी। फिर मैंने वहाँ एक चौकीदार जो रेलवे का ही रहता था वहाँ पर, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा तो वो उठा, साहब ये तो बंद हो गया रास्ता, अब आप निकल जाए। आप तो वहीं जाओ, वहाँ से जाना पड़ेगा, बाजार होके जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार कुछ तो वो उन्होंने कहा आप और थोड़ा आगे जाओ, आखिरी प्लेटफॉर्म के पास में वहाँ पर जंगले थोड़े छोटे लगे हुए, वहाँ से आप उतर जाना, उतर सकते हो। अब मैं वहाँ गया तो वास्तव में उतरने जैसी स्थिति में चढ़ के उतर सकता था। तो अच्छा, उसके जैसे ये जंगले लगे और उधर यूँ मजार बनी हुई, उसी से लगी हुई। मैंने कहा यार अब कंडिया भी रखना, केटली भी रखूँ तो धुलेगी वो, तो क्या ऐसा। तो मैंने एक पेड़ से चढ़ा उसको, और वो तीखे अगर लग जाए तो ये जहाँ घुस जाए तो बड़ी दिक्कत। बहुत परेशान हुआ मैं उस दिन, परीक्षा ली। फिर मैंने कंडिया तो जैसे तैसे उठा के, मैंने कहा सीताफल टूटे के कुछ भी हो, धीरे से उठाया और मैं ऊपर चढ़ के डाला। अब केटली कैसे डालनी, मैंने टुवाल बांधा और टुवाल से उसको धीरे से, जो कुएं में जैसे बाल्टी डालते ना, ऐसे मजार पे रख दी। फिर मेरी थैली डाली। थैली उस समय क्या, एक पजामा नहीं, सुबह टॉवेल चली है, कोई कपड़े दूसरे से ले ही नहीं जाते थे, वो डाली। फिर मैं कूदा। अब कूदा तो मजार पे ही कूदा मैं क्या, मैंने कहा जो भी हो सही, पर वो मजार भी मतलब गोपाल की निगाह में थी, मतलब किसी अच्छे माहौल की थी। पहुँचा, रघु भाई थे उस समय वहाँ पर। तो रघु भाई 12 बजे ही गोपाल को कहे कि गोपाल चांदनी हो गई है क्या, अब भोग लगा। तो कहने हमने अभी नहीं हुई थी। ऐसा उन्होंने 4-5 बार कहा। तो अभी चांदनी हुई नहीं, अभी वार से चांदनी। तो मैं फिर पूछा, अब घबराएगा तो बहुत। किस्मत से गोपाल ने ही दरवाज़ा खोला। क्या मेरा पसीना पसीना हो गया, इसलिए नहीं कि सामान की वजह से, मैं मजार पे पैर रखी इसलिए। मैंने कहा ये तो अब अपना ये अपने को ले लेगा अपने, अब निश्चित है कुछ तो गड़बड़ होना निश्चित है। तो जैसे ही उन्होंने सामान रखवाया, मुझे जी भाई तुम्हारा नहीं लेवा, और मैंने कहा यार तुम्हारा 1 बजे नहीं लाया। मैंने कहा ये तो मार दिया गोपाल, नहीं ले लो। तो 2 व्यवस्था थी, एक ऊपर बाथरूम था जो गोपाल खुद उपयोग करते थे, नीचे जो था वो मतलब ज़्यादा लोग जाते थे वहाँ कर। तो मैंने कहा अब नीचे, और ठंड जब दिन चांदी रहा तो सब मैंने नहीं अपने को ऊपर ही नहाने का वो नहाया। तो उन्होंने ही कहा कि अब कहीं चिंता करवा जरूर नहीं। फिर मैंने किस्सा सुना, मैंने कहा मैं तो हो गया वो सब हो गया बस सब।